Good evening, madam. Hello. How are you? I'm good. I'm good. Okay. There is one simple question. You were in medics and you were in Bollywood. How do you define both and how do you manage both the fields together? Can you share your experience? Managing both the fields together is much difficult to say. Once I was in Bollywood, I was not practicing, and once I was practicing, I was not in Bollywood. Right now, I can say कि हम दो नाव पे एक साथ सवार नहीं हो सकते because both are very different and both are very difficult and very challenging field. We know you have worked in many films and televisions, Yeah. and we want to know about your experience in Bollywood. If I'll share about Bollywood, it is very difficult and it is very challenging for a newcomer, especially who is from a non-filmy background, जिसके parents filmy नहीं है, because you don't know anyone once you step into Bombay. First of all, that challenge comes from there, and second challenge, which is very most important, is the money. You don't have any capacity to survive. Then how will you ask for work? Second most challenging part, which was much easier for me because my mom always supported me for this. So financially, socially and emotionally, I was much supported by her. Thirdly is, once you go to someone, आप उसको कैसे कन्विंस करोगे कि आप एक अच्छे एक्टर हो या एक अच्छे मॉडल हो, कि आप उसके प्रोडक्ट को अच्छी तरह सेल कर पाओगे, चाहे वो एक्टिंग फील्ड का है, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो कोई भी एड फिल्म हो. सो इट वाज लाइक अ चैलेंजिंग टास्क बिकॉज देयर इज कोई एग्जाम नहीं है, कोई लिखाई पढ़ाई नहीं है, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. और फोर्थ, आपके ऊपर किसी का हाथ नहीं होता, तो उस टाइम पे आपको बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप उसको, अगर एक प्रोजेक्ट में फेल होते हो तो दूसरे प्रोजेक्ट के लिए आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हो. दैट बिकम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि उस टाइम पे आपको लगता है बस दिस इज द एंड ऑफ माई करियर और यही मेरा करियर खत्म हो जाता है. बट नो, इट्स नॉट दैट, कि स्टोरी उसके बाद शुरू होती है. What do you mean by आपके ऊपर किसी का हाथ नहीं होता? Do you want to say that there is no financial support from your parents' side, or you indicating towards your sugar daddy? Someone's sugar daddy, you can say. Godfather, I can say that. Yes, Godfather in some point, yes, it is required because Bollywood is something which needs a direction. Because someone like me was directionless, baseless, aimless, कि अब बस आगे एक्टिंग करने हैं. और मेरे जैसे हजारों सैकड़ों लोग हैं जो आ जाते हैं डेली अपने होम टाउन से. आई वॉज फ्रॉम डेली, मैं लोरेटो की थी, एंड आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट फ्रॉम माई फैमिली बैकग्राउंड, एंड माई फादर वॉज आर्मी ऑफिसर. तो एक माइंड में था कि हाँ, आई हैव अ गुड दिस थिंग. इट इज़ नॉट अबाउट द शुगर डैडी, इट इज़ अबाउट द गॉड फादर. यू शुड नो कि आपको इससे मिलना है, इससे नहीं मिलना है. एंड वंस यू आर वेरी न्यू टू बॉलीवुड, यू डोंट नो whom to meet, whom not to meet. You meet every kind of coordinator, every kind of casting person. हर audition में जाते हो, and I think that is the best thing. Once you do that, कि उसी के बाद आपको परख होगी कौन अच्छा है और कौन बुरा है. Tell me one question, one answer you have to give. You are in this film industry for many years. What is your message to the newcomers in the industry? Message is nothing. Have a lot of talent and a lot of backup plan. It should be plan. If plan A doesn't work, plan B should be there. Like in my case, I always have plan B as medical. That can hinder your plan A to be successful because आपके mind में रहते मेरे पास plan B है. But at least you will not go in any other like wrong ways and methods to get that plan A, because you know you have plan B if plan A doesn't work. And you don't have to be greedy, or you cannot be what do you say, I'm forgetting the word. You cannot be hopeless and financially less if you don't have plan A working with you. So you should have always plan B or ample amount of money backup. Hello, hi. You told
newcomers should have two types of plans, plan A and plan B. Right. But do you think their concentration may go on due to these two types of plan? Yes, because one is always hopeful for plan A, बट माइंड में कहीं ना कहीं प्लान बी के बारे में सोच के रखोगे तो एक कॉन्फिडेंस भी रहता है माइंड में कि हाँ आई हैव समथिंग टू वर्क ऑन और टू बी ऑन आफ्टर इफ दिस इज नॉट अचीव। यू कैन नॉट बी आप वो असहाय बेसहारा लाचार होके किसी के सामने गिड़गिड़ाओगे नहीं एटलीस्ट, या कुछ गलत कदम नहीं उठाओगे जिसके लिए आपको पेरेंट्स को या अपने सोसाइटी में आँख दिखाना और नाक झुका के चलना पड़े। सो आई एम सेइंग कि आपके पास प्लान भी रहता है तो आप थोड़ा और कॉन्फिडेंट फील करते हो। सो यू कैन गिव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम इफ यू हैव प्लान बी। Okay, I'm very happy to hear about you that you had you belongs to medical fields, which is a Noble profession. noble Yeah, profession. I know. And you came to Bollywood. Sometimes it is this career is not Up to the mark, I can say yes. yeah, it is not treated good in society, especially due to some incidents in Bollywood recently. What is your comments on that? Look, some incidents happen everywhere, not only in Bollywood, because Bollywood is very highlighted. Corporate world में काफी ज़्यादा देखा है। Bollywood is all about show business, your looks, your body, how's your figure looking, how's your nose looking, how's your eyes looking, and it is all about the attraction towards your personality. You know, one of the very old directors said कि अपूर्वा अगर तुझे हीरोइन बनना है, then guys should masturbate once you're in the cinema hall. You know, these were his words. So I say I completely agree on that point. That time I was a little bit scandalized, but बाद में सोचती हूँ हाँ, जब तक तृप्ति डिमरी को लोगों ने एनिमल में नहीं देखा था तब तक तृप्ति डिमरी वॉज नॉट द नेशनल क्रश ऑफ इंडिया। कला में या लैला मजनू में उसको कोई नहीं जानता था, जानते थे दैट शी इज एन एक्टर, बट शी वॉज अ सुपरस्टार ओवरनाइट एनिमल के उस एक सीन ने, क्योंकि शी डिड अ वेरी रिवीलिंग सीन, होल बॉडी नेकेड। तो है बॉलीवुड तो डेफिनेटली थोड़ा है। एंड देखो किसी के लिए आप किसी को प्रेफरेंस देके काम करवा रहे हो तो इसमें तो नेपोटिज्म प्रेफरेंस और यू नो पार्शियलिटी होना ये सब लाजमी है। आई हैव सीन इन मेडिकल फील्ड जहाँ पे मैं सपोज करूँ कोई केस मांगू अपने सीनियर से कि ये केस मुझे करना है सर्जरी, एंड दैट शी इज एंड अनदर डॉक्टर इज फेवरेट ऑफ दैट सीनियर, आई एम डैम श्योर वो उस केस को उनसे करवाएगा ताकि वो अच्छा बने एज ए डॉक्टर। तो ये प्रेफरेंस इज एवरीवेयर, कितना ज्यादा कम ही डिपेंड करता है। मेरे साथ इतने बुरे इंसिडेंट्स नहीं हुए हैं जैसे बाकी लड़कियों के साथ होते हैं, थैंकफुली टच वुड, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी हैव बैकअप प्लान, आई डिडंट हैव फाइनेंशियल प्रॉब्लम, नोबडी हैव आस्क्ड मी टू स्लीप फॉर द रोल। But yes, some girls do this by their own choice also, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर डायरेक्टर प्रोड्यूसर से अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है तो आगे और फिल्मों में उनको काम देंगे। तो वो उनका टैक्टिस है, उनका वे ऑफ थिंकिंग है आई थिंक, एंड मे बी दे आर राइट, मे बी दे आर रॉन्ग इन सम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड मेडिकल फील्ड में हिंदर मुझे ये लगता है कि हम लोग मेहनत बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन उतना नाम नहीं हो पाता अनलेस अंटिल यू आर वेरी ओल्ड एज। मैं एक तरफ फिल्म लाइन में किसी चीज़ की शूट कर रही हूँ तो लोग मेरे से सेल्फी लेने आते हैं, वेराज मैं वही चीज़ में कोई सर्जरी परफॉर्म करके किसी की जान बचा लेती हूँ या कहीं कोई बहुत डिफिकल्ट केस सॉल्व हो जाता है तो उसमें कोई सेल्फी नहीं लेता, बस ठीक है थैंक यू डॉक्टर करके रहने देते हैं। तो दोनों फील्ड में ये थोड़ा हिंड्रेशन तो है कि एक्टर्स को पॉलिटिशियन को बच्चा जानता है, मेरा डॉक्टर्स को उसके गिवन प्रेमाइसेस से ज़्यादा कोई नहीं जानता है। तो इस वजह से यस बॉलीवुड इज मोर अट्रैक्टिव देन मेडिकल फील्ड, बट अनलेस अंटिल इफ यू आर नॉट द ए लीग एक्टर्स देन देयर इज नो पॉइंट टू बी इन बॉलीवुड, बिकॉज एक्टर्स और मॉडल्स बहुत सारे हैं बट नाम होना उतना कि आपको दीपिका पादुकोण एंड यू नो अमंग टॉप 10
तब आपको वो फील्ड परस्यू करनी चाहिए. अदरवाइज आई थिंक आपको अगर इफ यू प्लान बी देन गो फॉर प्लान बी. दैट विल गिव यू मोर मनी देन एक्टिंग फील्ड.